हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अखिलेश कुमार श्रीवास्तव है। मैं एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर की सीरीज़ में आज हम लोग लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग डबल एंडेड क्यू के बारे में भी देखेंगे। आज के लेक्चर की आउटलाइन में सबसे पहले हम लोग क्यू क्या है इसका रिकैप लेंगे। देन क्यू को लिंक लिस्ट से कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है इसके बारे में देखेंगे। Then we will see about the double-ended queue, what are the different variations of the double-ended queue, and finally we will see the linked list implementation of the double-ended queue. Now last lecture में मैंने आपको ये बताया था कि queue उन situations में use किया जाता है जहाँ पे first in first out या first come first serve behavior expected है। तो definition के form में मैंने आपको बताया था कि queue is an ordered collection of item where the item may be inserted at one end called the front of the queue and deleted from the other end called the rear of the queue. So अगर हमें insertion करना है तो वो rear end पे होगा और deletion हमारा front end पे होगा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये भी देखा था कि किसी क्यू को array के थ्रू कैसे implement किया जा सकता है। आज के लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि लिंक लिस्ट के थ्रू हम क्यू को कैसे implement करें। So these are the types of the queues that we have seen on the last time. There is a linear queue, we have a circular queue, we have a double-ended queue, and we have a priority queue. So linear queue और circular queue implementation point of view से थोड़ा सा different हैं। linear queue को और circular queue को अगर हम array से implement करें, then there is certain limitation of the linear queue. To overcome that, we use the circular queue. But in case we are going to use or we are going to implement the queues using the linked list, the circular queue and the linear queue are the same. Because in both the cases we have to ensure the first in first out or the first come first serve behavior. We will discuss about the double-ended queue where the services are possible at rear and the front end both. इसका मतलब है कि insertion और deletion दोनों double-ended queue में दोनों एंड्स पे प्रोवाइड किया जा सकता है। प्रायोरिटी क्यू जहां पे वैसे तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बिहेवियर फॉलो हो रहा है, लेकिन यहां पे डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट प्रायोरिटी होगी। अगर एलिमेंट्स डिफरेंट प्रायोरिटी के हैं तो हायर प्रायोरिटी के एलिमेंट्स की सर्विस पहले होगी और लोअर प्रायोरिटी के एलिमेंट्स की सर्विसेज बाद में होंगी। अगर सेम प्रायोरिटी के एलिमेंट्स हैं तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बिहेवियर हम इंश्योर करेंगे। सो प्रायोरिटी क्यू में डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट प्रायोरिटी हो सकती है and the item with the highest priority will be served first and the lower priority elements will be served later. Now these are the four operations that is possible on the queue. One is the NQ, insertion operation को हम NQ कहते हैं, deletion operation को हम DQ कहते हैं। किसी भी queue को अगर हमें traverse करना है, elements देखना है कि कौन कौन से queue में present हैं, इसके लिए हम traverse operation call कर सकते हैं। Then we have an empty function that checks if the given queue is empty or not. In case my queue does not contain any element, the empty function will return true, otherwise it will return false. In case the queue has some element present, this empty function will return false. So it will return true only in the case the queue does not contain any element. Fine. So आइए अब linked list implementation की बात करते हैं। linked list implementation of queue में इनिशियलाइजेशन हमें करना है, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक लिंक लिस्ट है जिसमें दो पॉइंटर्स अवेलेबल हैं, एक रेयर और फ्रंट। इन दोनों को हमने नल से इनिशियलाइज कर दिया है। नल से इनिशियलाइज करने का ये मतलब है कि हमारे पास इनिशियली लिंक लिस्ट में कोई भी नोड्स नहीं है, कोई भी वैलिड नोड नहीं है, इसलिए रेयर और फ्रंट के पास कोई भी वैलिड एड्रेस नहीं होगा, इसलिए हमने रेयर और फ्रंट को नल सेट कर दिया। मान लीजिए कि हमें एनक्यू करना है। सो एनक्यू का मतलब यह है कि मुझे एक एलिमेंट इंसर्ट करना है। एक एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए मैंने एक नोड ले लिया, इस नोड में डाटा आइटम ए डाल दिया, इसके नेक्स्ट फील्ड में नल कर दिया, एंड देन इसके बाद इस रेयर और फ्रंट दोनों को सेम इसी नोड के एड्रेस पे हमने असाइन कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर इस नोड का एड्रेस 100 है तो हमने फ्रंट और रेयर दोनों को 100 एड्रेस दे दिया। इसका मतलब यह है कि बोथ ऑफ दीज आर कंटेनिंग द एड्रेस ऑफ दिस नोड। ऑब्वियसली अगर मेरे पास क्यू में केवल एक एलिमेंट हो तो रेयर और फ्रंट दोनों सेम पोजीशन पे होंगे। सो हियर इन दिस केस रेयर एंड द फ्रंट बोथ आर एट द सेम पोजीशन।
अगर आपको एक और एलिमेंट इंसर्ट करना है तो आपको पता है कि आप रेयर एंड पे इंसर्शन करते हैं. सो व्हाट यू विल डू, आप इस नोड के बाद एक नया नोड लेंगे, उसमें डाटा आइटम बी डाल देंगे, इसके नेक्स्ट फील्ड को नल सेट कर देंगे और करंटली जहां पे भी रेयर है उसके नेक्स्ट फील्ड में इस नोड का एड्रेस सेट कर देंगे. लेट्स से इसका एड्रेस 200 है. सो हमने प्रीवियसली जो नोड था जिसका एड्रेस 100 था, इसके साथ इस नए नोड को ऐड कर दिया या इसको लिंक कर दिया. अब क्यू का जो रेयर हमारा है वो सेकेंड नोड, मतलब ये जो हमने नया नोड क्रिएट किया है वहां पे आ जाएगा. सो नाउ रेयर हैज रीच्ड टू दिस नोड, front remains at the node that is containing the information A. We have to insert another item which is C. For the insertion of this item, we will again take a node, we will put the information C here and then we will apply a null here in the next field. इस वाले नोड को और इस वाले नोड को हम लिंक कर देते हैं. तो जो करंटली रेयर नोड हमारा है उसके नेक्स्ट फील्ड में न्यू वाले नोड का एड्रेस हमने रख दिया. सो इस तरह से ये लिंक हो गए. लेकिन रेयर को होना कहाँ चाहिए, उस नोड पे होना चाहिए जो कि करंटली ऐड हुआ है, इसलिए हम रेयर को यहां से शिफ्ट करके नए नोड पे शिफ्ट कर देते हैं. सो यू कैन सी दैट फ्रंट इज एट ए एंड रेयर इज एट नोड कंटेनिंग इंफॉर्मेशन सी. अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीशन कहां से होगा, डिलीशन फ्रंट से होगा. तो हमें इस नोड को डिलीट करना है. हम इस नोड को डिलीट करेंगे तो फ्रंट मेरा नेक्स्ट नोड पे शिफ्ट हो जाएगा. तो इसलिए फ्रंट अब बी नोड पे है. एंड देन अगर मुझे डीक्यू करना है, अगेन मुझे फिर से डिलीशन करना है, तो मैं इस नोड को डिलीट कर दूंगा और इस नोड के डिलीशन के बाद फ्रंट आगे वाले नोड पे शिफ्ट हो जाएगा. इसका मतलब है कि नाउ वी हैव ओनली सी आइटम प्रेजेंट इन द क्यू एंड फ्रंट एंड द रेयर बोथ आर पॉइंटिंग एट द सेम पोजीशन. सो दिस इज हाउ वी इंप्लीमेंट द क्यू यूजिंग द linked list. We just have to provide the first come first serve behavior or first in first out behavior. Now let's write the algorithm for the same. कैसे algorithm लिखेंगे हम इसके लिए, सबसे पहले initialization. For initialization we have taken a queue. Let's say we will refer to the rear of the queue as q dot rear and front of the queue as q dot front. ऑब्वियसली अगर मुझे अपने क्यू को इनिशियलाइज करना है तो हम इसको नल से इनिशियलाइज करेंगे रेयर और फ्रंट को, क्योंकि मेरे क्यू में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है. तो रेयर एंड फ्रंट बोथ ऑफ दीज शुड नॉट कंटेन एनी वैलिड एलिमेंट. ओके, सो दिस इज द इनिशियलाइजेशन. q dot rear is equals to null and q dot front equals to null because my queue does not contain any element in the beginning. Now how can we do the empty function or how can we implement the empty function? empty चेक करने के लिए अगर मेरा rear भी null है और front भी null है, in case our rear is null and our front is null, my queue will be empty. Now अगर आप ये माने कि आपके पास ये queue है जहां पे front भी यहीं पे है और rear भी यहीं पे है. अगर आप इस आइटम को या इस नोड को डिलीट करेंगे, सो आफ्टर द डिलीशन ऑफ दिस नोड फ्रंट विल बिकम नल एंड रेयर कैन नॉट पॉइंट टू द वैलिड एलिमेंट, देन रेयर विल आल्सो बी नल. सो व्हेन फ्रंट इज नल, रेयर इज आल्सो नल. सो इन केस फ्रंट इज नल एंड रेयर इज नल, even if you check one of the pointer as null, your work will be done. So because of that only we have checked only if front is null, then I will return true, saying that or indicating that my queue is empty. And in case q dot front is not null, it is containing any valid address, it means my queue will be containing some elements. So in case my queue contains some element, it has a front which is pointing to the valid address, my queue will not be empty. So in that case I will return false. So if q dot front is null, return true, otherwise return false. Now let's take the NQ operation. How do we perform the NQ operation? NQ means मुझे insertion करना है. Insertion करने के लिए मुझे एक node चाहिए. So let's take a node. How we will take the node? We will take the node with the help of the getNode function. Let's say there is a getNode function that will provide me a node whenever required.
whenever I will be calling this function, this will allocate the memory for the given node. So get node function has allocated the memory for this node, and let's say the address of this node is p. Then in the enqueue operation, it has been given that x is the data item which has to be inserted. So provide the information x here in this node, p dot info is equals to x. Then ये हमारा लास्ट नोड बनेगा, इसीलिए इसके नेक्स्ट फील्ड में हम नल सेट कर देते हैं. सो p डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नल. देन हमें इन दोनों नोड्स की लिंकिंग करनी है. हाउ विल वी लिंक दीज टू नोड्स? रेयर और फ्रंट दोनों इस वाले नोड पे हैं, उस नोड पे हैं जिसमें इंफॉर्मेशन a है. नाउ हमें रेयर और नए वाले नोड की लिंकिंग करनी है, या जो प्रीवियसली जो रेयर था और जो नया नोड बना हमें उसकी लिंकिंग करनी है. तो अगर ये रेयर है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि रेयर के नेक्स्ट फील्ड में हम p का एड्रेस रखेंगे. सो आई कैन से दैट q डॉट रेयर डॉट नेक्स्ट is equals to p. So this is the setting that we have to do. So we have done it. q dot rear dot next is equals to p. अब हमारी लिंक लिस्ट चेंज हो गई है, हमारा q चेंज हो गया है, x नया आइटम ऐड हो गया है, इसलिए रेयर को भी इसी पे होना चाहिए. इसलिए जो रेयर है उसको यहां पे शिफ्ट हो जाना चाहिए. सो फॉर दैट ओनली q dot rear is equals to p. Okay, let me repeat what has happened. We have taken a node, p equals to get node, then we have kept the information x in this node, and then we have set the next field of this node as null. We have set the next field of this node as null because इस नोड के ये जो नोड हम नया बना रहे हैं that will be the last node, और लास्ट नोड के नेक्स्ट फील्ड में नल होना चाहिए. सो इन 3 इंस्ट्रक्शन से हमने नोड बनाया और उस नोड को लास्ट नोड बता दिया. एंड देन उसके बाद हमने प्रीवियसली रेयर जो नोड था और जो करंटली ये नोड हमने बनाया, इन दोनों की लिंकिंग कर रहे हैं. कैसे लिंकिंग करेंगे? रेयर ये नोड है, इसके नेक्स्ट फील्ड में p का एड्रेस रख देते हैं. सो रेयर नोड के नेक्स्ट फील्ड में हमने p का एड्रेस रख दिया. क्योंकि लास्ट नोड चेंज हो गया है, अब नया लास्ट नोड बन गया है, तो रेयर को हमेशा लास्ट नोड पे होना चाहिए, इसलिए q डॉट रेयर इज इक्वल्स टू p. So this way we have set the new node at the end और रेयर को हमने नए नोड की पोजीशन पे पहुंचा दिया. लेकिन सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि मेरे लिंक लिस्ट में मेरे क्यू में इनिशियली कोई भी नोड्स ना हो. अगर कोई भी नोड्स इनिशियली नहीं है तो उस केस में फ्रंट भी नल होगा और रेयर भी नल होगा, बोथ विल बी नल. अगर रेयर भी नल है और फ्रंट भी नल है तो हम क्या करें? हमने नया नोड तो बना लिया है, दिस इज द न्यू नोड विद अस. इस न्यू नोड में x इंफॉर्मेशन भी डाल लिया और इसके नेक्स्ट फील्ड में नल भी सेट कर लिया है. तो अगर रेयर ऑलरेडी नल है तो हम क्या करते हैं कि रेयर को इस पोजीशन पे पहुंचा देते हैं, न्यू नोड की पोजीशन पे पहुंचा देते हैं. साथ ही साथ फ्रंट भी नल है, तो जब हमारा नया नोड क्रिएट हो गया है तो फ्रंट को भी न्यू नोड पे आ जाना चाहिए. तो इसीलिए फ्रंट को हमने न्यू नोड पे ले लिया. सो इसीलिए हमने ये स्टेटमेंट्स लिखा कि if q dot rear is equals to null, then front equals to p and rear is also equals to p. If q dot rear is null, it means my q is not containing any item initially. In that case, जो हमने नया नोड बनाया है उसी पे rear को भी मान लिया जाएगा और वही नोड front भी मान लिया जाएगा. So this way we can insert an item in the queue. Now let's see the deletions in the queue. डिलीशन करने के लिए मैंने आपको बताया कि आप फ्रंट एलिमेंट को डिलीट कर दीजिए और फ्रंट को आगे शिफ्ट कर दीजिए. सो दिस इज द बेसिक ऑपरेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म्ड. सो आपको सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि जिस क्यू से आप डिलीशन करना चाहते हैं क्या उस क्यू में कुछ एलिमेंट्स हैं या नहीं है. इन केस द क्यू डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, आई विल नॉट डिलीट दैट आइटम, या आई विल इन्फॉर्म दैट समथिंग रॉन्ग हैज हैपेंड. देयर इज एन अटेम्प्ट टू रिमूव the element from the empty queue. So this will be the condition of underflow. So you already have a function named as empty. So you just call that function. In case this function returns true, you print the information that the queue underflows and exit. In case the queue underflows, you may prefer to exit.
बट इफ द क्यू इज नॉट एम्प्टी, अगर क्यू एम्प्टी नहीं है तो आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. व्हाट विल बी द ऑपरेशन परफॉर्म्ड हियर? सी, हियर वी आर अप्लाइंग अ एल्स, बट दिस एल्स इज नॉट कंपल्सरी. Even if you do not write this else, the code will run or the algorithm will run fine. क्यों? क्योंकि अगर एक exit function execute हो गया है तो हमारी algorithm already terminate हो गई है. तो algorithm terminate हो गई है तो इस लाइन पे वो कभी पहुंचेगा ही नहीं. लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई है तो ये ऑटोमेटिकली इस लाइन पे पहुंच जाएगा. ओके, नाउ सी, अगर मुझे फ्रंट एलिमेंट को डिलीट करना है, सो आई सेड p इक्वल्स टू q डॉट फ्रंट. मैंने पहले एलिमेंट को p ले लिया, जिस एलिमेंट को मुझे डिलीट करना है मैंने उसको p ले लिया. आफ्टर दिस मैंने p, ये जो फ्रंट है उसको आगे शिफ्ट कर दिया. इट मीन्स मैंने q डॉट फ्रंट को, जो कि फर्स्ट नोड पे था, अब मैंने इसको सेकंड नोड पे शिफ्ट कर दिया. सो q डॉट फ्रंट इज इक्वल्स टू q डॉट फ्रंट डॉट नेक्स्ट. तो इस ऑपरेशन से मैंने ये चीज इंश्योर किया कि फ्रंट पॉइंटर को मुझे आगे शिफ्ट करना है. ऑब्वियसली अगर एक एलिमेंट डिलीट होगा तो सेकंड नोड पे मेरा फ्रंट शिफ्ट हो जाना चाहिए. नाउ अभी मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ. जिस नोड को मुझे डिलीट करना था, किसी भी डिलीशन ऑपरेशन के कॉरस्पॉन्डिंग, ये किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में हो, जो भी डिलीटेड आइटम है हमें उसको रिटर्न करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्टैक का यूज कर रहे हैं तो उस स्टैक में अगर हम किसी आइटम को डिलीट करेंगे तो वो यूज हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन का इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो एक्सप्रेशन के इवैल्यूएशन के लिए हमें किसी आइटम को डिलीट करना पड़ेगा, पॉप करना पड़ेगा स्टैक से. वो पॉप्ड आइटम जो होगा उसको हम यूटिलाइज करेंगे अपने एक्सप्रेशन के इवैल्यूएशन के लिए. ओके, सो फॉर द एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन वी विल बी नीडिंग दैट आइटम. सो पॉप फंक्शन अगर रिटर्न नहीं करेगा तो हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे. सिमिलरली यहां पे डिलीशन ऑपरेशन के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा आइटम रिटर्न होना चाहिए. तो ये जो पी नोड है जिसका डाटा आइटम जिसको हमने डिलीट करने के लिए लिया है, उसकी इंफॉर्मेशन को x इक्वल्स टू p डॉट इन्फो से सेव कर लेते हैं x वेरिएबल में. देन इस नोड को हम फ्री कर देंगे. फ्री करने का क्या मतलब है कि इसने जो भी मेमोरी ऑक्यूपाई किया है उस मेमोरी को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, डीएलोकेट कर देंगे. नाउ इफ एवरीथिंग गोज फाइन, इट इज फाइन, नो इज नो इशू. बट लेट्स से वी हैव ओनली वन नोड इन द लिंक लिस्ट. We have only one node in the queue. So obviously the front will be here, rear will be here. Okay. For the deletion of this item, what you will take p here. Then before the deletion, you will shift this p to the next node by this statement, means q dot front equals to q dot front dot next. So the next field of this node will be containing null. Because of that, q dot front will now contain a null. So that is fine, q dot front is null. लेकिन जो q dot rear है वो तो इसी नोड, जिस नोड को मुझे डिलीट करना था उसी नोड का एड्रेस रखा है, जबकि इस नोड को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है. इस नोड को डिलीशन के बाद हमने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया है. तो अगर डिलीशन के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रंट मेरा नल हो जाता है तो मुझे रेयर को भी स्पेसिफिकली नल सेट कर देना चाहिए. इसीलिए यहां पे आपने कंडीशन चेक किया, इफ q डॉट फ्रंट हैज बिकम नल आफ्टर द डिलीशन, देन q dot rear should also become null. Okay, so this is a very important concept कि अगर डिलीशन के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रंट नल हो गया है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम रेयर को भी नल कर दें. and then finally we will have to return this item. Okay, so this is the dequeue operation wherein we have ensured that the deleted item is returned. The deleted node's memory has been deallocated. We have also ensured that while the deletion, if the queue has become null, it means the queue has become empty, we should declare that the rear has also become empty. Okay, so these are some of the checkpoints that we should make while designing these algorithms. Now let us learn about the double-ended queue. So double-ended queues are very interesting queues wherein the insertions and the deletions both are possible at both the ends. If the insertion and the deletion operations have to take from both the ends, it means that we will have to design the operations like insert left or insert right. Similarly, delete left
एंड डिलीट राइट। इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं कि लेफ्ट में हमने फ्रंट को लिया है और राइट में हमने रेयर को लिया है, सो डिलीट फ्रंट, इंसर्ट फ्रंट, डिलीट रेयर, इंसर्ट रेयर। तो इन ऑपरेशंस को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। सो डबल एंडेड क्यूज आर दोज क्यूज इन विच द सर्विसेज आर पॉसिबल एट बोथ द एंड्स। Insertions and the deletions are possible at both the ends. So double-ended queues are very important concept wherein we are working with a limited space and the limited space is about to fill. In case the limited information is about to fill or limited space is about to fill, then जो पीछे की जो information है हम उसको delete कर देते हैं जिससे कि new items उसमें आ सके. For example, if you are working with a limited size buffer in the word editor, तो वर्ड एडिटर में हमने लास्ट इन फर्स्ट आउट बिहेवियर इंश्योर कर रखा है अनडू ऑपरेशन के कोरस्पॉन्डिंग। लेकिन मान लीजिए हमने बहुत कुछ टाइप कर रखा है और टाइप करते चले जा रहे हैं, तो जो बफर की कैपेसिटी है जिसमें कि टाइप कैरेक्टर्स को हम स्टोर करेंगे वो लिमिटेड है। तो अगर हमने नए कैरेक्टर्स टाइप किए तो उस केस में बफर की अगर लिमिट क्रॉस हो रही है तो पुराने कैरेक्टर्स हमारे डिलीट होते चलेंगे। ठीक है, ऑल्दो वी आर ट्राइंग टू डिलीट द एलिमेंट from the top whenever the undo operations are performed, but at the same time some of the previous items which has been pushed, those will also be deleted. So we need the services or we need the deletion operation being performed at the top and at the bottom as well. Okay, so double ended queue के दो variations हैं. One of the variation is known as the input restricted double ended queue, another variation is known as the output restricted double ended queue. What happens in the case of the input restricted double ended queue, that deletion is possible at both the ends, but input means the insertion will be possible at only one end. So in case the deletion is possible at both the ends and insertion is restricted to one of the ends, we will say that we have a input restricted double ended queue. And in case we are providing the insertions at both the ends, but we are restricting the deletions to take place only from the one end, we will say that we have a output restricted double ended queue. So in the output restricted double ended queue, insertion is possible at both the ends, however the deletion is restricted to either of the ends. Now let us see how can we implement the double ended queue. For the implementation of the double ended queue, the doubly linked list is the best suited data structure, because in the doubly linked list you can insert towards the left and you can insert towards the right. You can delete the item from the left and you can delete the item from the right. So double ended queue can be implemented using the doubly linked list. So let us say we have a doubly linked list which contains some of the elements. Okay, it will have three fields. First field is known as the left, this field is known as the right, or you can take this as previous and you can take this as next. Okay, this field contains the data item. How to initialize the double ended queue? Let's say हमारे पास दो addresses हैं, rear और front, दोनों को मुझे null initialize करना चाहिए जैसा कि मैंने linear queue में किया था. Then empty function जो कि ये चेक करता है कि मेरा double ended queue empty है या नहीं. इसका मतलब है कि अगर front null है तो return true कर दीजिए. वैसे front और rear दोनों null होंगे तभी हमारा queue empty होगा. लेकिन हमने क्यू में भी देखा कि फ्रंट और रेयर दोनों साथ साथ नल हो रहे हैं, तो अगर आप इसमें से किसी को भी चेक कर लें, फ्रंट को चेक कर लेंगे तो रेयर भी नल होगा, अगर रेयर नल है तो फ्रंट नल होगा. सो आप केवल एक पॉइंटर को चेक कर लीजिए जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा नल है और कौन सा नल नहीं है. सो इफ यू चेक द फ्रंट इज नल, देन यू विल से दैट माय क्यू इज एम्प्टी, यू विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज यू विल रिटर्न फॉल्स. वन थिंग टू बी चेक्ड हियर इज that we are taking a DQ. DQ means double ended queue. So for accessing the rear field, we are doing DQ dot rear. For accessing the front field, we are writing here DQ dot front. So these are the initialization and the empty functions. Now let's do the insert left operation. Let's say हमारे पास एक linked list पहले से है या हमारे पास double ended queue पहले से है जहां पे रेयर और फ्रंट दोनों सेम पोजीशन पे है. अब आपको यहां पे इंसर्शन करना है लेफ्ट की तरफ. सो लेफ्ट की तरफ इंसर्शन करने के लिए आप सबसे पहले एक नोड लेंगे.
इसमें इंफॉर्मेशन x डालेंगे, इसके लेफ्ट फील्ड को नल सेट करेंगे। प्रिकॉशनरी में एक काम कर रहा हूं कि इसके प्रीवियस फील्ड और नेक्स्ट फील्ड दोनों को नल कर दे रहा हूं। ओके, मैंने ऐसा माना कि जब मैं लेफ्ट में इंसर्शन कर रहा हूं तो लेफ्ट में इंसर्शन करते समय मेरा नोड फर्स्ट नोड की तरह से इंसर्ट होगा। अगर मेरा नोड फर्स्ट नोड की तरह से इंसर्ट होगा डबली लिंक लिस्ट में, तो मेरे नोड का जो प्रीवियस फील्ड होगा वो नल होगा। लेकिन मैंने प्रिकॉशनरी एक काम ये किया है कि इसके नेक्स्ट फील्ड को भी नल सेट कर लिया है। इसके बारे में मैं आपको बताता हूं अभी क्यों। अगर मान लीजिए कि आपके पास दोनों नल हैं, रेयर और फ्रंट, इन दैट केस जो आपने एक नोड क्रिएट किया है उसके दोनों फील्ड्स नल होने चाहिए। ओके, इसीलिए आपने फ्रंट और रेयर दोनों को नल सेट कर दिया। नाउ अगर आपको इंसर्शन करना है तो आप कैसे कहेंगे कि यहीं पे रेयर है तो इसके प्रीवियस फील्ड में इसका एड्रेस आना चाहिए। ओके, एंड देन इसके नेक्स्ट फील्ड में इसका एड्रेस आना चाहिए। तो ये हमारा नया नोड है जो कि पी नोड है। तो पी नोड अगर हमारा ये है तो इसके नेक्स्ट फील्ड में इस नोड का एड्रेस आना चाहिए जो कि रेयर नोड है। ओके, एंड इसके प्रीवियस फील्ड में, इस नोड के प्रीवियस फील्ड में इस नोड का एड्रेस आना चाहिए। सो दैट्स व्हाई वी सेड कि p डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू dq डॉट रेयर एंड dq डॉट रेयर इज इक्वल dq डॉट रेयर, इसके प्रीवियस फील्ड में इस नोड का एड्रेस आना चाहिए। p नोड का हमारा एड्रेस आ गया। नाउ ये जो नया नोड हमारा है, इस नए नोड पे हम मान रहे हैं कि रेयर है। आप इसको रेयर यहां पे मान सकते हैं या फ्रंट मान सकते हैं, यहां पे ये आपकी चॉइस पे है। तो हमने ये माना है कि हमारा रेयर इधर लेफ्ट की तरफ है और फ्रंट मेरा राइट की तरफ होगा। सो हमारा रेयर यहां पे है। सो चूंकि रेयर यहां पे है तो रेयर को मुझे अपडेट करना होगा बाय दिस स्टेटमेंट सेइंग दैट dq डॉट रेयर इज इक्वल्स टू p। तो हमने एक नया नोड बनाया, इस नए नोड के इंफॉर्मेशन में x डाला, इसके दोनों फील्ड्स को नल सेट किया। उसके बाद सेटिंग किया पॉइंटर का रेयर के प्रीवियस फील्ड में इस नोड का एड्रेस और पी नोड के प्रीवियस फील्ड में, पी नोड के नेक्स्ट फील्ड में रेयर का एड्रेस। सो ये तीन स्टेटमेंट मेरे 1 2 3 जो कि कंपलसरी हो गए। नाउ अगर मान लीजिए कि मेरा रेयर इनिशियली नल है, अगर मेरा रेयर इनिशियली नल है तो उस केस में मैं रेयर के प्रीवियस फील्ड को तो रेफर नहीं कर सकता। इन केस आई कैन नॉट रेफर टू द प्रीवियस फील्ड, देन व्हाट वी विल डू, उस केस में ये कंडीशन लगा दीजिए कि अगर मेरा रेयर ऑलरेडी नल है तो जो भी आपने नोड बनाया है रेयर और फ्रंट दोनों को आप इसी नोड पे ले आइए। ओके, सो ये जो एक्स्ट्रा कंडीशन लगाया है वो इसीलिए लगाया है कि अगर हमारा रेयर और फ्रंट दोनों नल है तो फ्रंट और रेयर दोनों को न्यू नोड जो पी नोड है यहीं पे लेके आइए, रेयर भी यहीं पे और फ्रंट भी यहीं पे। सिमिलरली अगर आपको डिलीट करना है लेफ्ट से, ठीक है, अगर आपको डिलीट करना है लेफ्ट से तो उसके लिए आपको इस नोड को डिलीट करना होगा। इस नोड को डिलीट कर, अगर मान लेते हैं कि फ्रंट यहां पे है और रेयर यहां पे, तो इस नोड के डिलीशन के कॉरस्पॉन्डिंग आपको फ्रंट को आगे शिफ्ट करना होगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि कहीं एम्प्टी तो नहीं है क्यू। अगर क्यू एम्प्टी है तो डिलीशन पॉसिबल नहीं होगा, आप एग्जिट कर जाइए। अगर क्यू एम्प्टी नहीं है तो इस नोड को पी मान लीजिए, फ्रंट को आगे शिफ्ट कर दीजिए इस स्टेटमेंट से, इस नोड की इंफॉर्मेशन को कहीं सेव कर लीजिए एक्स वेरिएबल में और इस नोड को डिस्ट्रॉय कर दीजिए और फाइनली जब ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो इस एक्स को रिटर्न कर दीजिएगा। लेकिन मान लीजिए कि इस नोड, हमारे पास केवल एक नोड होता और हम इसको डिलीट कर देते, इसके डिलीशन के कॉरस्पॉन्डिंग मेरा फ्रंट नल हो जाता। जैसे मैं फ्रंट को आगे शिफ्ट करता फ्रंट मेरा नल हो जाता। अगर मेरा फ्रंट नल हो गया है तो उस केस में मुझे रेयर को भी स्पेसिफिकली नल सेट कर देना चाहिए। सो फॉर दैट ओनली what we have done, if front has become null, we have made rear also equals to null. So आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा कि लिंक लिस्ट से कैसे क्यू को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। देन हमने डबल एंडेड क्यू देखा और हमने ये देखा कि डबल एंडेड क्यू में कैसे हम इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। असाइनमेंट टास्क आपके लिए होगा कि आप इंसर्ट राइट और डिलीट राइट ऑपरेशंस परफॉर्म करें। इस लेक्चर में हमने ये भी देखा कि फ्रंट और रेयर को किस पोजीशन पे लिया जा सकता है, ये आपकी चॉइस है। फॉर एग्जांपल लीनियर क्यू में क्यू के इंप्लीमेंटेशन के लिए, सिंपल क्यू के लिए हमने रेयर को लास्ट में लिया और फ्रंट को बिगिनिंग में लिया। लेकिन डबल एंडेड क्यू को इंप्लीमेंट करने के लिए फ्रंट और रेयर को आप स्टार्ट में या एंड दोनों में से किसी भी जगह ले सकते हैं।
ये आपकी चॉइस पे है। थैंक यू।